حضرت علی، بولو کون؟ ساتھ میں بولنا، حضرت علی ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی بھی ساتھ میں ہے۔ بیوی کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کی قسم بہت پیاری بیوی، بلکہ دنیا کی عورتوں میں سب سے پہلا نمبر اگر ایمان میں آتا ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں جائے گی اور پھر اعلان ہوگا آپ تمام عورتوں کی سردارن، آپ تمام عورتوں کی رئیسن، آپ تمام عورتوں کی امیرن آ رہی ہے۔ جب ساری عورتیں دیکھے گی تو نبی کی لاڈلی بیٹی، عزت والے ابا کی عزت والی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ساری عورتوں میں جنت کی سردارن حضرت فاطمہ ہوگی۔ ایمان میں نمبر 1، بولو کون؟ حضرت۔ اب سننا، ماں بہنیں بھی سنیں، میاں بیوی بھی سنیں، بہت سننے کی بات ہے۔ حضرت علی اپنی بیوی کون؟ حضرت آیا، کہا کہ فاطمہ بہت ٹائم ہو گیا شادی کو، بہت زمانہ ہو گیا شادی کو، تم نے کبھی کوئی چیز مجھ سے مانگا نہیں، کبھی تم نے کوئی چیز مجھ سے، شادی کو اتنا زمانہ ہو گیا۔ حالانکہ بیوی آتی ہے اور خاص کر کے نئی نویلی دلہن ہو تو وہ اپنے ہسبینڈ سے کچھ نہ کچھ مانگتی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ شادی ہو گئی، لمبا زمانہ ہو گیا، تم نے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جب میرا نکاح ہو رہا تھا نا آپ کے ساتھ تو میرے ابا نے مجھے نصیحت کی تھی، کہا تھا فاطمہ علی غریب ہے، علی غریب ہے، ان کو ایسی چیز مت مانگنا جس سے وہ پریشان ہو۔ تب سے میں نے ارادہ کر لیا کہ مل جائے گا تو روزی ہے، نہ ملے گا تو روزہ ہے، مگر میرے ابا کی نصیحت تھی کہ اپنے شوہر کو پریشان مت کرنا، اس لیے میں نے کبھی آپ سے کوئی چیز مانگی نہیں اور آئندہ بھی آپ سے کوئی چیز مانگوں گی نہیں۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ لمبا زمانہ ہو گیا نکاح کو، کچھ تو مانگ لو، کچھ تو مجھ سے مانگو، میرے سے جو بن پڑے گا وہ میں کروں گا، کچھ تو مجھ سے مانگ لو۔ ہماری بیوی بھی مانگتی ہوگی نا ہم سے، بولی پھر تو دیکھو کیسے بیٹھے، نہیں تمہاری بیوی بھی بہت تقوی والی بھائی، بہت پرہیز، کچھ نہیں بولتی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کچھ تو مانگو۔ تو حضرت فاطمہ نے بہت دیر سمجھ جانے کے بعد کہا مجھے انار کھانے کا جی چاہتا ہے۔ کیا کھانے کا جی چاہتا ہے؟ انار سمجھتے ہو جس کو ہم لوگ داڑم بولتے ہیں، ہاں داڑم بولتے ہیں، عربی میں اس کو رمان کہتے ہیں۔ اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمان۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ جو رمان ہے نا، رمان انار، یہ جنت کا پھل ہے۔ جنت میں جہاں پھلوں کا ذکر آیا ہے وہاں انار کا بھی ذکر آیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے جنت میں انار ملے گا۔ اچھا بتاؤ نا، انار ملے گا نہیں ملے گا جنت میں؟ جب اللہ نے فرمایا تو معلوم ہے ہم کو، جب جنت میں انار ملے گا نا، یوں سامنے انار آئے گا، اللہ کی آواز آئے گی میرا بندہ جنت میں آئے ہو، کھاؤ انار کھاؤ، تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ یہ تو حلال میں بھی ملتا ہے، ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا، کہے گا اللہ یہ تو حلال میں ملتا تھا، اتنا تھا، کبھی کبھی ایک 25 روپے کا ہوتا تھا، کبھی ایک 15 روپے کا ہوتا تھا، لیکن یہ تو حلال میں بھی ملتا تھا۔ اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ خرید کے جا، کھانا شروع تو کر۔ حلال میں کھاتا تھا ختم ہوتا تھا، یہاں کھاتا جائے گا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کے سامنے ایک انار آئے گا، وہ کھانا شروع کرے گا، اتنا انار بڑھتا جائے گا، لذت میں بھی بڑھتا جائے گا، سائز میں بھی بڑھتا جائے گا، گولائی میں بھی بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، 10 جنتی ایک انار میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے۔ 10 جنتی ایک انار میں بیٹھیں گے اور کھائیں گے تو وہ جنت کا انار ہوگا۔ خیر یہ تو بات آ گئی تو بات میں نے کہہ دی۔ باقی حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ مجھے کیا چاہیے؟ ایک انار چاہیے۔
حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میرے جیب میں 1 دینار تھا. کتنا تھا پیسہ میرے جیب میں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حج کے موسم کے لیے کیا کرنا چاہیے. حضرت علی فرماتے میرے پاس کچھ نہیں تھا, 1 دینار تھا. میں نے فاطمہ کو کہا بالکل فکر مت کر, میرے جیب میں ہے 1 دینار ہے. میں یوں مدینے کی مارکیٹ میں گیا اور یوں انار خریدا اور یوں لے کر آیا, اور میرا دل خوش ہوگا کہ نبی کی بیٹی نے, میری بیوی نے مجھ سے 1 انار مانگا اور میں وہ انار لے کر آیا. بس حضرت علی فرماتے جھٹ سے میں گھر سے نکلا, سیدھے مدینے کی مارکیٹ میں گیا, 1 دینار دیا اور شاندار انار خریدا. اور انار کو اچھے طریقے سے اپنے, وہ زمانے میں لمبی لمبی چادریں ہوتی تھی, کہا میری چادر میں لپیٹا اور کہا 10 قدم چلا تھا, کسی بوڑھے کی آواز آئی, او علی. حضرت علی فرماتے کوئی بوڑھے کی آواز آئی, علی. تو میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا کہتا ہے 3 دن سے بھوکا ہوں, میری بیوی بھی بھوکی ہے, میرے گھر میں بچیاں جوان ہیں, کچھ ہو تو دے دو نا. تو حضرت علی نے فرمایا لیسا عندی درہم ولا دینار. حضرت علی نے کہا میرے پاس 1 چاندی کا سکہ بھی نہیں, 1 سونے کا سکہ بھی نہیں, درہم بھی نہیں, دینار بھی نہیں. تو بوڑھا کہتا ہے ما فی یدیک یا علی, علی وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا بولو انار ہے. تو کہا دے دو نا. حضرت علی نے کہا نہ, میری بیوی کے لیے لے کے جا رہا ہوں, اور میری بیوی نے کبھی زندگی میں مجھ سے کچھ مانگا نہیں, پہلی مرتبہ انار مانگا ہے. تو بوڑھے نے کیا کہا, اللہ اکبر, تمہاری بیوی بھی جوان ہے, میں بوڑھا ہوں کہاں سے کماؤں گا, اور میری بیوی بوڑھی اماں کہاں سے لائے گی, اور میری جوان بیٹیاں ہے کہاں جائے گی, 3 دن کے بھوکے ہیں. علی کیا تم کو یہ گوارا کہ 3 دن کے بھوکے ہیں آپ انار لے کے جا رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے میں نے وہ انار دے دیا. بولو وہ بوڑھے کو انار دے دیا. اب حضرت علی فرماتے چہرہ اترا ہوا, ارے بولو نا چہرہ اترا ہوا, اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے گھر گئے. طرق البابا, دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا, دروازہ کھولا, او فاطمہ, فاطمہ تھی. وہ چہرے سے سمجھ گئی معاملہ کچھ بدل گیا ہے. بھائی بیوی نہ پہچانے تو کون پہچانے, اللہ, بیوی اپنے شوہر کو نہ پہچانے تو کون پہچانے. بس وہ فاطمہ سمجھ گئی, کہا کچھ ہوا. حضرت علی نے کہا ہوا, بہت کچھ ہو گیا. کیا ہوا؟ انار خرید لیا تھا, اللہ کی قسم انار خریدا تھا, میرے پاس 1 دینار تھا, انار خریدا, لیکن راستے میں ایسا غریب مل گیا, ایسا بوڑھا مل گیا, ایسا مسکین مل گیا, ایسا ضعیف مل گیا کہ میں نے وہ دے. ابھی تو حضرت علی بات کر رہے ہیں کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, تو حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ بات بعد میں پوری کرتا, پہلے دیکھو دروازے پر کون آیا. حضرت علی فرماتے ہیں فتحت البابا, میں نے دروازہ کھولا تو حضرت سلمان فارسی کھڑے تھے اور کہا نبی نے 9 انار آپ کے لیے بھیجے ہیں. کتنے انار گئے, کتنے آئے, کتنے؟ حضرت علی نے کیا فرمایا معلوم ہے, 9 انار. 9. سلمان فارسی تم غلط ایڈریس پر آتے, نبی نے یہاں نہیں بھیجا ہوگا, نبی نے یہاں. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں, میرے نبی نے 9 انار دیے اور کہا میری بیٹی فاطمہ اور میرے داماد علی کو دے دو. حضرت علی کہتے غلط ایڈریس غلط ہے. ہم ہوتے تو کہتے غلط ایڈریس ہے. اچھا پیچھے فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی سن رہی ہے, اور حضرت علی کہہ رہے نا غلط ایڈریس ہے, کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا, لے جاؤ, اور میرے گھر کے لیے نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہارے گھر کے لیے نہیں ہے, نبی نے بھیجا ہے, 9 انار بھیجے ہیں اور بڑے اچھے انار ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا میں ایک اللہ کے راستے میں دے کر آیا ہوں, اور اللہ کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10, تو 9 کیوں ہے؟ 1 کے بدلے 10 تو 9 کیوں ہے؟ حضرت سلمان فارسی مسکرائے, کہا میرے نبی نے کہا تھا میرے علی کا امتحان لے لینا, یہ کہہ کر 10واں انار نکالا اور کہا اللہ نے یہ تمہارے نام سے بھیجا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے نبی کو بتایا, نبی نے مجھے بتایا, اور میں آپ کے پاس آیا. علی وہ 10 ہی انار ہے, لیکن میرے نبی نے کہا تھا ذرا دیکھ لینا میرے علی کی نظر کھانے پر آتی ہے یا میرے علی کی نظر میرے یقین پر آتی ہے. بولو سبحان اللہ. اور اللہ کا وعدہ 1 دو گے تو کتنا لوگے؟ ساتھ میں بولو نا, کتنا لوگے؟ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو 1 دے گا, اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے میں اسے 10 واپس لوٹاؤں گا. حضرت علی کا یقین تھا قرآن پر کہ جب 1 انار دیا کتنے انار آئیں گے؟
10 9 आए तो गलत हो गया, 10 आने चाहिए मेरे प्यारो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर कोई हज करे और ये समझता हो कि मैं कल्लाश हो जाऊंगा, मेरा जमीन बिक जाएगी, मेरी दुकान का सौदा हो जाएगा, मेरे जेवरात औरत समझे कि खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। थोड़ी देर के लिए अल्लाह लेगा और 10 गुना करके अल्लाह वापस लौटाएगा। और ये 10 वाली बात तो पहले की है, बोलो 10 वाली बात तो अभी। तो क्या बात है मालूम, ये आयत पहले आई थी जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया। 1 2 कितना लो, पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो ना। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। 1 दे दो, कितना ले लो। ये पहले की बात है, हालांकि कुरान की बात है। बाद में अल्लाह ने क्या फरमाया, बाद में अल्लाह ने क्या फरमाया। हाँ मेरे दोस्तों, कुरान पाक में वो आयत आ गई और एक जगह नहीं 2 जगह आई, 2 जगह कुरान पाक में आयत आई। मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। एक जगह, दूसरी जगह मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा कानून था, 1 देगा 10 लेगा। बोलो 1 देगा 10 लेगा। अल्लाह फरमाते मेरी रहमत जोश में आई, ओ मेरे आखिरी नबी के उम्मतियों, तुम देते जाओगे, गिन गिन के देते जाओगे, मैं इतना दूंगा कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। तो जो अल्लाह के वास्ते हज कर लेवे मेरे प्यारो, अल्लाह उसको बहुत देगा और आंख बंद होने से पहले अता करेगा। तो भाई पहली बात ये कहने की सब करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हज का मौसम है, हज के मौसम में हज की बात ना करें तो क्या करें। तो मेरे प्यारो सब करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे को बराबर याद है, मेरे को बराबर याद है, शरीयत पे अमल करोगे ईमान जिंदा। बोलो शरीयत पे अमल करोगे, यकीन के साथ करोगे तो ईमान जिंदा होगा। आपको बताऊं हमारा हिंदुस्तान, बोलो हमारा ये देश महान हिंदुस्तान, इसमें एक बहुत बड़े मुफ्ती भी जिसको कहो कि चीफ जस्टिस, सबसे बड़े मुफ्ती एक जमाने में, काजी सिराजुद्दौला। बोलो कौन काजी? आवाज नहीं आ रही आपकी, कोई प्रॉब्लम है आपको? घर में नहीं बोलते, बाहर तो बोलो, थोड़ी हिम्मत खुलेगी। अभी मालूम है मौलाना, घर का डर। अब मैं आपको क्या कहूँ, आप और मैं दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। ये बीवी का डर बहुत टेढ़ा है। हाँ इबादुल्लाह का है, तेरे से बीवी डरती है या तू बीवी से डरता है? सेम से नहीं, तू तो जिन्नत जैसा दिखता है। वो बीवी का डर तो ऐसा हो गया, मालूम है एक बीवी घर में आई शादी करके। बोलो भाई शादी करी तभी तो बीवी हुई ना, बीवी कहाँ से हुई? शादी करके वो बीवी घर में आई, आकर अपने शोहर को क्या कहती मालूम? हालोल वालोल में आई होगी, आकर अपने शोहर को क्या कहती, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। घर कितना गंदा था, घर में धूल मिट्टी मच्छर कीड़े मकोड़े, और वो कहती घर इतना डस्ट था, इतनी खराबी थी, इतनी बदबू थी, कहाँ मच्छर हो चारों तरफ से मच्छर घेर लेते थे। वो क्या कहती मालूम? मैं घर में आए घर को चोखा कर दिया। चोखा समझ के बोलते, हालोल में चोखा ही बोलते ना, चोखा यानी साफ सुथरा क्लीन कर दिया। वो बीवी कहती वरना मेरे आने से पहले तो घर कितना गंदा और चारों तरफ मच्छरों के तो हमले होते थे, मेरे आने के बाद घर एकदम साफ हो गया। वो मर्द हालोल का था, कहाँ का? हालोल का था। क्या कहा मालूम? वो कल ही मच्छरों की मीटिंग हुई। किसकी मीटिंग हुई? कल ही मच्छरों की मीटिंग हुई कि जो काम हम टेम्पररी करते थे परमानेंट करने वाली आ गई है, जो काम हम थोड़ा थोड़ा करते थे वो ज्यादा करने वाली आ गई। लोही चूसवू, खून चूसने का काम जो हम करते थे थोड़ा थोड़ा, तो मेरे प्यारों आप लोगों का भी थोड़ा टेंशन ऐसा ही चेहरे पर लगता है। सब सुनेंगे इंशाल्लाह सुनेंगे। मैं किन की बात कर रहा था? हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती काजी सिराजुद्दौला, मुफ्ती है, चीफ जस्टिस है, उनकी अदालत लगती है बाकायदा कठेड़ा। आपने कोर्ट देखा होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो जज कुर्सी पर बैठे और इधर एक कठेड़ा होता है, इधर एक कठेड़ा होता है, और जो भी आता है अपनी कंप्लेन लेकर आता। मालूम हुआ कि काजी सिराजुद्दौला के पास एक औरत आई, गरीब औरत आई, आकर कहा बादशाह की शिकायत लेकर आई
किसकी शिकायत? क्या शिकायत? कहा वो बादशाह जो है तीर मार रहा था। क्या कर रहा था? वो शिकार का शौक होता है बड़े बड़े बादशाहों को, तो वो तीर कुछ मार रहा था, तो कहा तीर मेरे बेटे के दिमाग पर लग गया। मेरा बेटा वहां से गुजरता था, वो तीर मार रहा था, वो मेरे बेटे के दिमाग पर लगा और मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। वो औरत रोने लगी कि मेरा छोटा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन मारा किसने है? बादशाह ने। मैं अदालत में आए हूँ और आपसे इंसाफ मांगने आए हूँ कि इतने बड़े बादशाह के बारे में आप क्या इंसाफ कर सकते हैं? वो कादी सिराजुद्दौला ने लिख दिया, जो बड़े बड़े जज लिखते कि ये दिन पे इतने बजे बादशाह को हाजिर होना पड़ेगा, औरत भी हाजिर होगा। पूरे इलाके में पता चला कि कोर्ट में बादशाह आने वाला है और बादशाह क्या फौजी आने वाले, बादशाह के सिपाही आने वाले और एक औरत आने वाली है और उसके बच्चे का कत्ल हुआ है। अब पूरा मजमा जमा और बादशाह को लाया गया। सबसे पहले कादी सिराजुद्दौला ने कहा, बादशाह क्या आपने इनके बेटे को कत्ल किया है? क्योंकि ये औरत कहती है कि आपका तीर इस बच्चे के दिमाग पर लगा और बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, आपने कत्ल किया है? बादशाह ने कहा मैंने कत्ल, बोलो किया। अब बादशाह ने कहा मैंने कत्ल किया, मैं इकरार करता हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं कत्ल किया, मैं इकरार करता हूँ मुजरिम हूँ। बल्कि मेरे फौजियों ने भी देखा, मेरे सिपाहियों ने देखा, बच्चे की लाश को भी देखा, तड़पते हुए भी देखा। तो काजी सिराजुद्दौला ने औरत को कहा, शरीयत तुझे दो चीज बता रही है। कितनी चीज बता रही है? एक तो ये है जान के बदले जान। अरे बोलो जान के बदले, जिसको अल्लाह ने फरमाया अन्नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास। वो काजी सिराजुद्दौला ने का पहला ऑप्शन, औरत तेरे पास ये जान के बदले जान। अगर इस बादशाह ने तेरे बेटे की जान ली है, तू कह दे हम ये बादशाह की जान ले लेंगे। शरीयत का कानून यही है। बोलो जान के बदले, साथ में बोलो ना, जान के बदले जान। और दूसरा ये है कि बादशाह तो तीर मार रहा था अपने एतबार से, लग गया किसको? बच्चे को लग गया। तो एक और भी चीज है, शरीयत उसकी भी इजाजत देती है। वो क्या है? वदियतुम मुसल्लमतुन इला अगली। 5वें पारे में लिखा कि पेनल्टी भर दे, यानी एक कीमत लगाई जाएगी जिसको अरबी में दियत, बोलो अरबी में क्या कहते हैं? दियत। वो पेनल्टी होती है, वो पेनल्टी बादशाह पर लगाई जाएगी। लेकिन बादशाह तेरे को फैसला नहीं करना, फैसला कौन करेगी? औरत करेगी। उसको जान के बदले जान चाहिए या जान के बदले माल चाहिए। जब औरत ने देखा बादशाह है और इंसाफ करने वाला बादशाह है और इकरार भी कर रहा है कि हाँ मेरे से गलती हो गई है और इतना बड़ा मजमा है, तो औरत ने रोते रोते कहा गरीब औरत हो, बच्चा जाना था वो तो चला गया, बादशाह को मार के क्या मिलेगा? बादशाह को बोलो दियत दे दे, यानी जान के बदले माल। बोलो जान के बदले माल। जान के बदले जान नहीं चाहिए, जान के बदले। अब तो बादशाह वक्त था, उसने कहा कितनी दियत होती है? कादी सिराजुद्दौला ने तय किया उस जमाने में कुरान हदीस की रोशनी में इतना इतना पैसा देना होगा। और बादशाह ने कहा जितना इस औरत ने कहा है उसका डबल दिया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। खैर वो औरत को डबल दिया गया और सारे लोग बादशाह की तारीफ करते करते चले गए कि बादशाह कोर्ट में आए और कोर्ट में आकर एक मुजरिम की तरह खड़े हो गए, अपने जुर्म का इकरार किया और वो जान देने को भी तैयार थे और माल देने का वक्त आया तो डबल माल देके चले गए। अच्छा जब सब चले गए वो बादशाह, देखो वो जमाने का बादशाह भी कैसा, बोलो सुभान अल्लाह। वो बादशाह जब सब चले गए तो काजी साहब के पास गए। कौन कादी? सिराजुद्दौला। और बादशाह ने अपना कपड़ा उठाया और एक खंजर निकाला और क्या कहा मालूम? अच्छा हुआ काजी साहब आपने कुरान हदीस की रोशनी में फतवा दिया, वरना इसी खंजर से मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर देता। अगर तुम ये सोचते कि बादशाह है बहुत बड़ा है और आप कुरान हदीस को छोड़ देते और मेरी चापलूसी करते, ये खंजर होता और आपकी गर्दन होती। अच्छा हुआ आपने कुरान हदीस की रोशनी में फैसला किया, वरना मैं ऐसे को जमीन पर नहीं रहने देता काजी बनकर जो बादशाह के फेवर करता और कुरान हदीस को छोड़ दे। मालूम हुआ क्या हुआ? कादी सिराजुद्दौला खड़े हुए, किस पर बैठे हुए थे? जो भी गद्दा कुर्सी पर बैठे हुए थे, अंदर से एक तलवार निकाली और कहा बादशाह मैंने बहुत फैसले किए, कभी तलवार लेके फैसला नहीं किया, लेकिन आज मैं तलवार लेकर बैठा था।
क्योंकि मुझे मालूम था कुरान हदीस की रोशनी में फैसला करूंगा। हो सकता है तुम बादशाह हो, नहीं मानोगे, अगर तुम ना मानते इसी तलवार से मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। मैं भी तलवार लेकर आया था क्योंकि तुम बादशाह हो। कह देते कि भाई मुझे नहीं मानना है, औरत को मार के निकालो, भगा के निकालो, तो औरत को तो मार के भगा के निकाला होता, लेकिन उससे पहले मैं ये तलवार से तुम्हारे 2 टुकड़े कर देता। मेरे दोस्तों, वो बादशाह और काजी दोनों एक दूसरे के गले लगे और क्या कहा, जब तक ऐसा रहेगा हिंदुस्तान में ईमान जिंदा रहेगा। जब तक अल्लाह रसूल की बातें रहेगी हिंदुस्तान में ईमान जिंदा रहेगा। और यही बात अल्लाह ने भी कुरान में कही। हालांकि ये तो बहुत बात का केस है कादी सिराजुद्दौला का, लेकिन 1400 साल पहले अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया, फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मुस्तफा तेरे पैदा करने वाले की कसम, वो मोमिन नहीं हो सकता जो नबी के फैसले पर राजी नहीं होगा। मेरे प्यारों, आज से हम लोग भी इरादा करें, ये हज ही की बात चल रही थी तो मैंने साथ में कहा सब लोग नबी के फैसले पर राजी हो जाओ कि हमारे पास इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है। नंबर 1 कलमा तय्यबा ला इलाहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। नंबर 2 नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, बोलो ना माशाअल्लाह। नंबर 3 ज़कात बहुत सारे लोग देते हैं माशाअल्लाह। रमज़ान के रोज़े भी माशाअल्लाह रखे। अब ज़िंदगी में बाकी क्या रह जाता है, हज। तो इरादा करो कि सब हज करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो पहली बात तो मुझे आपके सामने ये कहना था। और भरोसा किस पर करेंगे? हाँ, औरत ये ना सोचे मेरे सारे जेवर चले जाएंगे, मैं बगैर चूड़ी के क्या करूंगी, बगैर अंगूठी के क्या करूंगी, और फिर शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहे, कयामत में मेरा मुस्तफा क्या कहेगा, कयामत में मेरा अल्लाह क्या कहेगा। और सच बताओ, पूरा मजमा साथ में बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, यानी साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक वाकया सुना रहा हूं, फिर बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वो वाकये का जो आखिरी पॉइंट है उसको असल में सुनना है। आप सबको मालूम है, एक मैदान हुआ, जिस मैदान का नाम था मैदान उहद। बोलो क्या नाम था? उहद कहो या उहुद कहो, दोनों कह सकते हैं, मारका उहद या मारका उहुद। हाँ, आपको मालूम है, जो लोग उम्रा करने गए होंगे वो उहद पहाड़ को देखा? अरे हाँ बोलो ना, देखा? 18 किलोमीटर तक पहाड़ है, कितना? और हमारे नबी को वो पहाड़ से बहुत मोहब्बत। हमारे नबी ने फरमाया, हाज़ा जबलुम मिन जिबालिल जन्ना उहिब्बुहु व युहिब्बुनी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उहद पहाड़ जो 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है, हमारे नबी ने फरमाया ये जन्नत का पहाड़ है। सारे पहाड़ कयामत में रेजा रेजा हो जाएंगे, मगर मदीने का पहाड़, उहद पहाड़ 18 किलोमीटर पर फैला हुआ। हमारे नबी फरमाते ये पहाड़ जन्नत में जाएगा। और हमारे नबी फरमाते, भले ये पहाड़ है मगर ये मुझसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते गए। इससे मोहब्बत करते उहद पहाड़। आपको मालूम है, उहद में 70 सहाबा शहीद हुए। कितने? मैं आखिरी पॉइंट पर आना चाहता हूँ। कितने सहाबा शहीद हुए? आवाज नहीं आ रही आपकी? अल्लाहु अकबर। एक बात हालोल वाले कान खोल कर सुनना, मेरी माँ बहनें भी सुने। एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, उससे कई गुना ज्यादा नबी उम्मती से मोहब्बत करती है। बोलो सही है कि नहीं है? एक माँ को पता चले बेटे का एक्सीडेंट हुआ, हालांकि बेटा बड़ा है, बीवी वाला है, लेकिन माँ को पता चला मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। आपने देखा होगा, माँ की सांस रुक जाती है। और हो सकता वो बेटे से बात नहीं करती थी, कुछ मामला झगड़े का था, लेकिन माँ के कान में खबर मिली कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, या मेरे बेटे को अटैक आया, या मेरे बेटे को कैंसर हो गया। ओ माँ उछल जाती है। मेरे दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे के बीमार होने पर इतनी परेशान होती है। आप अंदाजा लगाओ, उहद पहाड़ के पास हमारे नबी के दिल मुबारक पर क्या गुजरी होगी जब खबर मिली 70 सहाबा शहीद हो गए। बोलो कितने सहाबा? अच्छा, और हमारे नबी ने क्या फरमाया? हजरत बिलाल को फरमाया, बिलाल मुझे ले चलो ना, मुझे 70 का देखना है। भाई 70 को मुझे देखना है, मेरा उम्मत है। भाई माँ तमन्ना करती है कि आखिरी वक्त में मेरे बेटे को देख लूं। नबी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरे उम्मती को देख लूं। मेरे दोस्तों, वो 70 सहाबा जो शहीद हुए ना,
वो सबके जनाजे रखे हुए, बोलो सबके जनाजे रखे हुए, और सबके ऊपर कपड़ा है, सफेद कपड़ा है या कोई और कलर का कपड़ा है, किसी का कफन आधा है, किसी का कफन मुकम्मल है, लेकिन सारों के ऊपर कपड़ा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले सहाबी के पास गए जो शहीद हो गए थे, उनकी चादर मुबारक को हटाया, बोलो चादर मुबारक को हटाया। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। एक, फिर कोई किसका नंबर आया? 2, फिर किसका नंबर आया? 3। जब 3 को देख लिया, फिर सीधे हजरत बिलाल ने चौथे को कुछ नहीं कहा, सीधे 5वें पे ले गए। तो हमारे नबी ने फरमाया, ये चौथे नंबर के शहीद को क्यों छोड़ दिया? भाई पहला तुमने बताया, दूसरे का चेहरा बताया, तीसरे का चेहरा बताया, फिर किसका नंबर आता है? तो सीधे 5वें पर क्यों आ गए? तो हजरत बिलाल ने रोते रोते कहा, अल्लाह के रसूल न देखो, न देखो, ये चौथे वाले को न देखो। हमारे नबी ने कहा, है कौन? तो कहा अम्मार। कौन है? अम्मार। पूरा नाम है अम्मार बिन जियाद, बोलो पूरा नाम हजरत अम्मार बिन जियाद। 25 साल की उम्र। कहा वो 25 साल के अम्मार है। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा अम्मार, 25 साल का अम्मार, जवान अम्मार, क्यों मुझे क्यों नहीं देखना? बिलाल ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, इनका चेहरा नहीं देखना, आगे बढ़े, 5वां, 6वां, 7वां, अभी तो 70 तक जाना है। हमारे नबी ने फरमाया, लेकिन इनको क्यों नहीं देखना? फरमाया, अल्लाह के रसूल क्या देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सर से लेकर सीने तक 80 तलवार के जख्म लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हड्डी का ढांचा है और 2 आंखें, बोलो हड्डी का ढांचा है और अल्लाहु अकबर। कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल आप नहीं देख पाओगे। एक माँ अपने बच्चे को यह हाल में नहीं देख सकती, आप नबी है, आप उम्मती को कैसा देख पाओगे? आप आगे बढ़े। सच बताना मेरे दोस्तों, क्या हमारे नबी आगे बढ़ जाएंगे? क्या हमारे नबी आगे बढ़ जाएंगे? बल्कि हमारे नबी अब तक चलते चलते देख रहे थे, हमारे नबी वहां बैठ गए, बोलो वहां, और हमारे नबी ने अपने हाथ से हटाया। सही था, पहचान में नहीं आते थे, 2 आंखों का सुराख नजर आता था, हड्डी का ढांचा था। आपको ताज्जुब होगा, हालुल वाले सारे सहाबा जमा हो गए, हमारे नबी भी वहां है, रो रहे हैं, बैठे हुए। अचानक अम्मार ने दोनों आंखों को खोल दिया, बोलो सुभान। हदीस में लिखा, इन्ना अम्मारन कद फतह आइनई, हजरत अम्मार ने अपनी दोनों आंखों को खोला। तो जो सहाबा खड़े थे ना, कहते थे अल्लाह के रसूल, ओ अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, इन्ना अम्मारन कद फतह आइनई, ये अम्मार को देखो, इस हाल में के बदन में खून नहीं है, लहू नहीं है और हड्डी का ढांचा है, मगर हमने अपनी आंखों से देखा, इन्होंने आंखों को खोला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे भी मालूम है, मेरे अम्मार ने आंखें खोली है, और इसलिए खोली है कि इनका कोई अरमान रह गया, इनकी कोई तमन्ना रह गई। हमारे नबी और करीब गए, बैठे थे ना हमारे नबी, और करीब जाके बैठ गए और क्या कहा, अम्मार, ओ अम्मार, आंखों को खोला है, मतलब है कोई तमन्ना रह गई, आज अम्मार तू तमन्ना करेगा, नबी तेरी तमन्ना को पूरा करेगा, बोलो सुभान। आज अम्मार तू उम्मती तमन्ना करेगा और नबी तेरी तमन्ना को पूरा करेगा। मेरे प्यारों, वो सहाबा कहते हैं कि हमने बराबर गौर से देखा, अम्मार के बदन में हरकत आई, बोलो बदन में, देखो देखो यूं हरकत आई, यूं सर उठाया और नबी के पाँव मुबारक पर रखा, सर उठाया, नबी के पाँव पर रखा, और एक जैसे गैब से आवाज आई, फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैं तो कामयाब हो गया, काबा के पैदा करने वाले की कसम, बोलो मैं तो कामयाब हो गया। हमारे नबी ज़ारों कतार रोए। अम्मार का सर कहाँ पर है, बोलो नबी के कदम, नबी की गोद में अम्मार का सर है। हमारे नबी रो रहे और रोते रोते कहते, अम्मार हो गई तमन्ना पूरी, हो गई, हो गई तमन्ना पूरी, हो गई अम्मार, तुमने तमन्ना पूरी कर दी अम्मार। तो सारे सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल तमन्ना तो कुछ भी नहीं की, इन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि काबा के पैदा करने वाले की कसम मैं तो कामयाब हो गया, तमन्ना तो इन्होंने की नहीं। आप कहते वो तमन्ना करेंगे, नबी तमन्ना पूरी करेंगे, उन्होंने तो तमन्ना कुछ की नहीं। तो मेरे दोस्तों सुनना क्या फरमाया हमारे नबी ने, फरमाया मेरे अम्मार की तमन्ना थी, जिया मुस्तफा के कदम पर, मरूंगा भी मुस्तफा के कदम पर। जिया था, पूरी जिंदगी जिया नबी के कदमों पर, मरूंगा भी नबी के कदमों पर। और देखो आज उनका सर है, मेरा कदम मुबारक है, जिए थे मेरे कदमों पर, मरे भी मेरे कदमों पर। मेरे प्यारों, यही जुमले के लिए मैंने आपको ये वाकया सुनाया। आज से ये पूरा मजमा इरादा करे, हम रमजान में रोजे रखे, अरे बोलो ना, रोजे रखे, तरावी
पढ़ी ईद की नमाज के बाद जो पहली नमाज हुई, अल्लाह अल्लाह क्या हो गया? कहाँ है वो रमजान? कहाँ गया वो नूर? कहाँ गया वो अल्लाह के सामने रोना धोना? कहाँ गई वो नमाजें मेरे प्यारों? ऐसा लगता है कि रमजान आया ही नहीं था हमारे सामने। हम नबी से इतने दूर हो गए, अल्लाह की कसम इतने दूर हो गए कि माफ करना, आज हमको प्यारे नबी का चेहरा भी पसंद नहीं आता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अच्छा पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, नहीं आवाज नहीं आ रही है। मेरा ऑपरेशन हुआ है, आपका तो नहीं बने और अल्लाह कराए भी नहीं। आमीन बोलो आमीन। अल्लाह सबको सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, कोई ऑपरेशन का मामला नहीं आवे। लेकिन ऑपरेशन के बाद मेरे को एक सबक मिला, मौलाना सिराज साहब, एक सबक मिला। यहाँ काटा गया, यहाँ से यहाँ तक। मैं सोचा ये काटा गया और तकलीफ हुई। बोलो क्या हुआ? साथ में बोलो ना, काटा गया तो क्या हुआ? तकलीफ हुई। मेरे प्यारों, जब मौत का वक्त आएगा, बगैर काटे हमारी रूह को निकाला जाएगा। कोई काट छाट नहीं होगी, ऐसा का ऐसा बदन होगा और अंदर से रूह को खींचा जाएगा। जिसको हम क्या कहते हैं, कौमे में आ गया, कौमे में आ गया। डॉक्टर ने कहा है 4 घंटे का मेहमान है, कोई कहता है डॉक्टर ने कहा घर पे ले जाओ, अब कभी भी मौत आ जाएगी। अब 1 दिन में भी आवे, 1.5 दिन में भी आवे, 2 दिन में भी आवे। मेरे दोस्तों, वो जो रूह खींची जाती होगी, जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबअन फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अमरा। जब वो रूह खींची जाएगी, उस वक्त हमारा क्या आलम होगा मेरे प्यारों। इसलिए रमजान तो मुकम्मल हो गया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब रमजान के रोजे का सवाब बाकी रखना है या खत्म करना है? नहीं, साथ में बोलो, बाकी रखना है खत्म करना है? तो बाकी रखना है तो 2 काम के लिए कौन कौन तैयार होता है? हाथ ऊपर करो। 2 काम बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि तकरीबन 11:15 तो हो गए ना। हाँ, बस तो 12 बजे तक इंशाल्लाह बात को मुकम्मल करेंगे। लेकिन पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले इंशाल्लाह। नहीं बोलो ना इंशाल्लाह, अपनी मर्जी पर नहीं, रसूल की मर्जी पर बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी वो नबी। बोलते जाओ हालोल में हर वक्त हमारी आवाज आई है, साथ में बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी। बचपन का आलम है, बोलो कौन सा आलम है? बचपन का आलम है। माँ बीबी आमीना परेशान है, मेरे बच्चे को खिलौने की जरूरत है, मेरे बच्चे को खिलौने की जरूरत है। बचपन का आलम है, माँ बेवा है, बच्चा यतीम है और माँ तड़प रही है, मेरे बेटे को कोई खिलौना दे दे, मेरे बेटे को कोई खिलौना दे दे। वो रात का सन्नाटा, बीबी आमीना माँ ने फरमाया, मेरे मासूम बच्चे ने उंगली से इशारा किया, फिर उंगली से इशारा किया। माँ कहती है मैं आसमान पर देखती गई, जहां मेरे बच्चे की उंगली जाती है वहां चांद भी चला जाता है। बच्चे की उंगली मुबारक यहाँ गई, चांद आगे, उंगली मुबारक यहाँ गई, चांद पीछे, उंगली मुबारक यहाँ गई तो चांद दाने, फिर उंगली मुबारक यहाँ गई तो चांद बाएं। और आवाज आई, ए बीबी आमीना, इसको खिलौने की जरूरत नहीं, हमने आसमान के चांद को भी मुस्तफा के लिए खिलौना बना दिया है। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। हमारे नबी वो नबी। बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। हमारे नबी मक्का के जंगलों में जाए, मदीना की वादियों में जाए, अरे कोई पत्थर हमारे नबी को सलाम करे और हमारे नबी सलाम का जवाब दे। पत्थर कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। और हमारे नबी कहे हादा हजरुन यारिफुनी व आरिफु युहिब्बुनी व उहिब्बुहु। हमारे नबी कहे अबू बकर उमर, जरा देखो इस पत्थर को देखो, ये मुझे पहचानता, मैं इसे पहचानता, ये मुझसे मोहब्बत करता, मैं इससे मोहब्बत करता। तो हमारे नबी को सलाम करने वाला कौन? पत्थर है। मोहब्बत करने वाला कौन?
میں ایک بات بتاؤں، پورا مجمع انشاءاللہ حالول کا جم کے کہے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ رمضان میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ عمرے میں گئے، ارے بولو نہ گئے، اور آئندہ بھی جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ حج بھی کریں گے، پہلے حج کریں گے، بولو انشاءاللہ، بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا جو لوگ مدینہ گئے تھوڑی دیر کے لیے، جیسا وہ قاری رشید صاحب پڑھ رہے تھے تو بہت اچھا جملہ کہا تھا، ہے حالول میں اپنے آپ کو لے جاؤ مدینہ میں، بولو سبحان۔ میں بھی کہہ رہا ہوں ابھی حالول میں ہے، آنکھیں کھلی رکھو، دماغ لے جاؤ کہاں پر؟ آپ سب لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ جتنے نبی دنیا میں آئے 1,24,000 2,24,000 کم زیادہ جتنے نبی آئے سب زمین پہ رہے کہ نہیں؟ زمین پہ رہے کہ نہیں رہے؟ ارے زمین پہ رہے، کوئی کہاں کی زمین میں، کوئی عرب کی زمین میں، کوئی عجم کی زمین میں، کوئی یمن میں، تو کوئی شام میں۔ مطلب ہے کہ سارے نبی کہاں پر رہے؟ نہیں، جب تک یہاں تھے دنیا میں کہاں تھے؟ اچھا سارے اولیاء کرام، چاہے وہ شاہ عالم ہو، قطب عالم ہو، ارے اجمیر والے ہمارے پیارے بابا خواجہ معین الدین چشتی ہو، یا پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی ہو، یا خواجہ سراج الدین ہو، یا خواجہ روشن چراغ ہو، یا بابا فرید الدین گنج شکر ہو، یا میرے دوستوں کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، بولو جب تک دنیا میں رہے کہاں رہے؟ ساتھ میں بولو نا، کہاں رہے؟ سارے نبی زمین پر، سارے اولیاء زمین پر، جتنے بھی شہید ہوئے سب کہاں شہید ہوئے؟ ارے بولو نا، سارے شہیدوں کے سردار کون؟ حضرت حمزہ، بولو کون؟ حضرت حمزہ، نبی کے چچا۔ کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، ہمارے نبی نے فرمایا سارے شہیدوں کے سردار میرے چچا حضرت حمزہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ایک اور شہید ہے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ہمارے نبی کے نواسے، بولو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن کہاں شہید ہوئے؟ کربلا کی۔ حضرت حمزہ کہاں شہید ہوئے؟ احد کے۔ سارے نبی، سارے اولیاء، سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، سارے مشائخین، سب کہاں رہے؟ ارے بولو نا، سب کہاں رہے؟ ہمارے نبی کہاں رہے؟ ہمارے نبی کہاں رہے؟ سارے لوگ زمین پر رہے، ہمارے نبی کہاں رہے؟ اب سننا، کان کھول کر سننا، بہت پتے کی بات ہے۔ سارے انبیاء زمین پر، سارے اولیاء زمین پر، سارے شہداء زمین پر، سارے صالحین بولو زمین پر، سارے اولیاء کرام زمین پر، ہمارے نبی کہاں؟ تو سنو، جو لوگ مدینہ گئے، حالول میں ہو دماغ مدینہ لے جاؤ، مدینہ منورہ میں آپ نے نبی کے کمرے کو دیکھا ہوگا، بھئی دیکھا؟ جہاں نبی کا روضہ مبارکہ ہے وہیں پر حضرت ابوبکر آرام کر رہے، وہیں پر حضرت عمر آرام کر رہے، ارے وہاں پہ گئے ہوں گے، بولو گئے ہوں گے، وہاں پہ سلام پڑھا ہوگا، بولو سلام پڑھا ہوگا، اور دعا کرو کہ اللہ سب کو لے جائے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، ہمارے نبی نے فرمایا جو مدینہ آئے گا اور میری قبر مبارک پر آئے گا، میرے روضہ مبارک پر آئے گا، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو وہ ہمارے نبی کا کمرہ، حجرہ مبارکہ، بولو کیا؟ حجرہ مبارکہ۔ اور آپ نے دیکھا وہ حجرہ مبارک جو وہاں شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر چلے تو آپ کو نبی کا ممبر نظر آئے گا، جہاں ہمارے نبی کا ممبر لگتا تھا، اور ہمارے نبی وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے جمعہ میں، تو وہ ممبر، تو وہ حجرہ، بولو وہ حجرہ، اور وہ ممبر، پھر بولو وہ حجرہ اور وہ ممبر، یہ پورا ہمارے نبی کے رہنے کی جگہ، بولو یہ ہمارے نبی کے رہنے کی بھی جگہ، عبادت کی بھی جگہ، نماز کی بھی جگہ، صحابہ کے ملنے کی بھی جگہ، پڑھنے پڑھانے کی بھی جگہ، یہ پورا۔ اور ہمارے نبی نے یہ جگہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ حجرہ، وہ ممبر، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہمارے نبی نے فرمایا میرا پورا گھر لے لو، اور میرے گھر مبارک سے لے کر، میرے حجرے مبارک سے
لے کر میرے منبر مبارک تک چلے جاؤ، جتنا ایریا ملے گا، اللہ کی قسم ہمارے نبی نے فرمایا وہ زمین نہیں ہے، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے. بولو سبحان اللہ. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا گھر دنیا والوں کی نظر میں، یہ میرا منبر دنیا والوں کی نظر میں، یہ زمین دنیا والوں کی نظر میں، لیکن نہ یہ گھر ہے، نہ یہ منبر ہے، نہ یہ زمین ہے، یہ مکمل جنت کا ٹکڑا ہے. تو پورا مجمع بولے سارے نبی زمین پر، سارے اولیاء زمین پر، سارے صدیقین زمین پر، سارے شہداء زمین پر، سارے صالحین زمین پر، اور ہمارے مصطفیٰ جنت میں. بولو ہمارے مصطفیٰ. جب تک ہمارے نبی مدینہ میں رہے، اللہ کی قسم زمین پر نہیں، کہاں رہے؟ اسی لیے آپ کو معلوم ہے وہ آخری وقت میں ملک الموت اللہ اکبر ہماری روح کو کیا کرتا ہے؟ ارے آئے گا نہیں آئے گا؟ حالول میں تو ایسا بیٹھے مرنے کا نہیں ہے. حالول میں موت نہیں آتی ہوئے تو میں بھی حالول رہ جاؤں مولانا، ضرورت پڑے تو شادی بھی کر لے بھائی. یہاں پہ موت نہیں آتی ہوئے تو پھر شادی کیا بری بات ہے مولانا. پھر تو آتی ہے موت، آتی ہے، آتی ہے موت، آتی ہے موت کسی کو چھوڑنے والی. اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اللہ نے فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ملک الموت آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، ہماری روح کو نکالے گا، اللہ کے سامنے حاضر کرے گا. اللہ فرماتے پوری دنیا کے ڈاکٹر کوشش کرے اس کو موت نہ ملے، اللہ فرماتے میرا فیصلہ موت کا ہوگا. سارے ڈاکٹر ہاریں گے، اللہ کا فیصلہ آگے بڑھے گا. بولو سبحان اللہ. تو مرنا تو ہے نا بھائی سب کو. ارے بولو نا، مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ ہمارے نبی کے پاس جب ملک الموت آئے، بولو ہمارے نبی کے پاس آخری وقت میں ملک الموت آئے، اور ظاہری بات ہے روح نکال تو نہیں سکتے. میرے نبی کی پرمیشن، محمد مصطفیٰ مجتبیٰ اجازت ہے تو آپ کی روح مبارک کہاں لے جاؤ گے؟ ارے بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے ملک الموت کو پوچھا میری روح نکالو گے، میری روح مبارک کہاں لے جاؤ گے؟ آپ کی روح مبارک آپ نبیوں کے امام ہے، سارے نبی مقتدی، آپ مقتدی ہے، آپ کی روح کو جنت میں لے جاؤں گا. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا تو ابھی کہاں ہوں میں، ابھی کہاں ہوں میں؟ جنت میں میرے دوست. اللہ کی قسم صرف ہمارے نبی وہ اکیلے نبی ہے کہ ساری دنیا زمین پہ رہی، ہمارے مصطفیٰ جنت میں رہے. بولو سبحان اللہ. جو دنیا میں جنت میں ہوگا وہ حقیقت میں کہاں ہوں گے؟ اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا، بات آئی ہے تو میں بات بتاؤں. ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی. بولو پورا مجمع بولو. ایک نہیں، حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں بہت دعائیں مانگی، میں صرف ایک دعا بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی، اے اللہ میرے کو جنت دینا. بولو اللہ میرے کو. آواز نہیں آ رہی، اب تھک گئے تو میں بند کر دوں. پورا مجمع بولے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ میرے کو. آواز نہیں آ رہی. اللہ میرے کو. یہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ مجھے نعمتوں والی جنت دینا. اچھا یہ جو حضرت ابراہیم نے مانگا نا وہ قرآن میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہے؟ تو جب ہمارے نبی کے سامنے یہ آیت آئی، کیونکہ قرآن تو ہمارے نبی پر نازل ہوا، تو ہمارے نبی کے سامنے یہ آیت ہے اچھا میرے دادا ابا نے جنت مانگی. میرے دادا ابا کون؟ حضرت ابراہیم نے جنت مانگی، اللہ مجھے نعمتوں والی جنت دینا. تو ہمارے نبی نے سوچا میں بھی مانگوں. بھائی جب ہمارے دادا ابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جنت مانگی تو ہمارے نبی مصطفیٰ نے سوچا کہ میں بھی دعا مانگوں، نعمت والی جنت مانگوں. جیسے ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کو سب معلوم. اللہ پوچھتے میرے مصطفیٰ کیا ہوا؟ کہا وہ دعا مانگنا ہے. اللہ نے پوچھا کیا دعا مانگنا ہے؟ کہا وہ حضرت ابراہیم نے جنت مانگی، مجھے بھی جنت مانگنا ہے. اللہ نے پوچھا کون سی جنت چاہیے؟
अल्लाह ने पूछा मुस्तफा मांग क्यों रहे हो, कौन सी जन्नत चाहिए? दिखती बात है, कौन सी जन्नत चाहिए? सबसे ऊंची वाली, जिसका नाम जन्नतुल फिरदौस है। तो हमारे नबी ने फरमाया मुझे जन्नतुल फिरदौस चाहिए, सबसे ऊंची वाली जन्नत चाहिए। अल्लाह ने कहा वो जन्नत तो तेरी उम्मत को अता करूंगा, वो जन्नत तो तेरी उम्मत को अता। तो हमारे नबी ने फरमाया हज़रत इब्राहिम ने जन्नत मांगी, अल्लाह मैं जन्नत मांग रहा हूं, तू कहता है तेरी उम्मत को जन्नत अता करूंगा, वो भी जन्नतुल फिरदौस। तो अल्लाह मुझे क्या मिलेगा? हमारे नबी कह रहे अल्लाह मुझे क्या मिलेगा? हज़रत इब्राहिम को जन्नत मिले, हज़रत आदम को जन्नत मिले, सारे नबियों को जन्नत मिले, शहीदों को जन्नत मिले, सिद्दीकीन को जन्नत मिले, औलिया को जन्नत मिले, मेरे उम्मतियों को जन्नत मिले। नबी ने कहा अल्लाह मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया मेरा अर्श के सामने एक मकाम है जिसका नाम मकाम महमूद है, जो जन्नतों के कई ऊपर है। मेरा अर्श है, मेरे अर्श के सामने मकाम महमूद है। मेरा मुस्तफा तुम्हारी मंजिल वो है, तुम मुझे देखकर मुस्कुराओगे, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा यबअसक रब्बुक मकामम महमूदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा मैं तुम्हें मकाम महमूद अता करूंगा। मेरे अर्श के सामने महल होगा, मेरे अर्श के सामने तुम्हारी मंजिल होगी, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराऊंगा, तुम मुझे देखकर मुस्कुराओगे। तो कौन कौन तैयार है? एक आवाज से कहो, दो काम करना है, अपने रमजान के रोजे को कबूल करवाना है, तरावी को कबूल करवाना है। भाई बहुत मुश्किल से रोजे रखे है ना, गर्मी थी ना, अल्लाहु अकबर। आपको एक बहुत अजीब बात बताऊं, हमारा इफ्तार में जब 10 मिनट बाकी होता था, दस्तरखान लगता था, हाँ कि नहीं, खजूर, पानी, समोसा, भजिया और वो लाल कलर का शरबत ठंडा ठंडा, अंदर से कुछ होता था कि नहीं होता था? बहुत अजीब हो यार, मेरे को ही होता था खाली, अरे मैं कुछ होता था कि नहीं होता था? ऐसा होता था, कब कब अजान होए, हाँ होता था कि नहीं? और कोई मौलाना अगर दुआ भी कराए तो भाई इसकी दुआ कब खत्म होती है। और हमारी नजर किस पे मालूम, कोई अगर प्लेट लेकर आ रहा है ना, फौरन यूं दुआ में देखा, वो समोसा आया, समोसा आया, वो भजिया भजिया भी आ गया, आया, वो हालोल का कबाब भी आया। बोलो होता था कि नहीं होता था? आज आपको एक हदीस सुनाओ, इफ्तारी में जैसे हम देखते हैं ना खाने को, हम किसको देखते हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा तू खाने को देखता है, मैं तुझको देखता हूँ। अब सुभान अल्लाह बोलना, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू रोजेदार है ना, तू खाने को देखता है, मैं रोजेदार बंदे बंदी तुम्हें देखता हूँ, और अकेला नहीं देखता हूँ, फरिश्तों को कहता हूँ तुम भी मेरे बंदे बंदियों को देखो। अल्लाह भी देखते हैं, फरिश्ते भी देखते हैं, वो हमको देखते हैं, हम किसको देखते हैं? और फिर जब जैसा इफ्तार का वक्त हुआ, अजान हुई, हाँ या ऐलान हो गया भाई इफ्तार का वक्त हो गया, जैसा हम वो पानी लेते ना, पानी और पीते ना, अल्लाह फरिश्तों को कहते ये पानी इसके हलक में जाएगा, इसके गले में जाएगा, ये ठंडा ठंडा पानी इसके हलक में जाएगा, पानी के जाने में देर होगी, उससे पहले मैं मेरे बंदे की मगफिरत कर दूंगा। ये ठंडा पानी उसके गले को तर करे, उससे पहले मैं इसे माफ कर दूंगा। इसीलिए हमको मालूम नहीं, हमको वो दुआ तो मालूम है भाई, इफ्तार की दुआ, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका फ़तक़ब्बल मिन्नी। लेकिन जब ठंडा पानी पिए तो क्या दुआ? इफ्तार में सब लोग पानी पीते हैं ठंडा ठंडा, क्या दुआ पड़ेगा? शरबत पिए तो क्या दुआ? हमारे नबी ने वो दुआ बताई और वाक़ये की तरफ इशारा। हमारे नबी ने क्या फरमाया, जब पानी पिए, ठंडा ठंडा पानी इफ्तार के वक्त पिए, और हलक में पानी पहुंचने से पहले अल्लाह ने मगफिरत कर दी। हमारे नबी ने क्या दुआ बताई, इंशाअल्लाह। इतनी छोटी सी दुआ है मगर बहुत प्यारी दुआ है। ज़हबज़माउ, प्यास बुझ गई, बोलो प्यास बुझ गई। वबतल्लतिल उरूक, मेरे बदन की रगे तर हो गई, मेरा हलक तर हो गया। वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, और मेरा सवाब भी साबित हो गया कि अल्लाह ने फैसला कर दिया, अल्लाह ने फैसला कर दिया, तेरा हलक तर हुआ, उससे पहले मैंने मगफिरत का परवाना अता फरमा दिया। मेरे दोस्तों, ये रमजान का रोजा रखा ना, अरे बोलो ना,
मुश्किल था, अब उसकी बरकतें ख़त्म नहीं हो जाए, उसके लिए दो काम करना है। जो एक काम मैंने आपको बताया, मुस्तफ़ा का दामन। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोलो मुस्तफ़ा का दामन। आवाज से बोलो मुस्तफ़ा का दामन। हलोल वाले नाराज तो नहीं हो रहे? नहीं होंगे तो क्या करेंगे? हालोल तो मेरे को बुलावे ना बुलाइए, मालूम है हालोल की तारीख मांगी नहीं, मैंने अपनी तरफ से दी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मांगी नहीं, बल्कि कोई दूसरा मेरी जगह होता तो हालोल तारीख ही न देता, क्योंकि 3 मरतबा मेरी तारीख को पूरी फिरदौस ने कैंसिल किया। वो अरबी बोल के ने वापस मेरे को खुश भी कर दिया है, बाकी 3 मरतबा मौना फिरदौस ने, मेरे को तो ऐसा लगा कि मेरा निकाह विकाह तोड़ने के लिए बैठा हुआ है। तो हालोल तो मैंने खुद तारीख दी और खुद आया हूं, तो बहुत पते की बात बताने जा रहा हूं। पूरा मजमा बोले मुस्तफ़ा का दामन। आवाज नहीं आ रही? बोलो मुस्तफ़ा का दामन। यहाँ बहुत से कटिंग बटिंग मारे हुए हैं। अरे भाई मोहब्बत है ना, नबी से मोहब्बत है ना। नबी देखो, अपनी मर्जी छोड़ दो, अपनी मर्जी छोड़ेंगे आबाद हो जाएंगे। अल्लाह रसूल की मर्जी पर आएंगे, आबाद हो जाएंगे। अपनी मर्जी को छोड़ दो, बोलो अपनी मर्जी को। वो मालूम है वो रमजान में ज़कात देते हैं, बोलो देते ना ज़कात? अरे हाँ बोलो ना। तो होगा मालूम है कहाँ का होगा? अल्तरू का होगा या हाथों का होगा, जहाँ का भी होगा, या डबोई का होगा, कहाँ होगा? ये क्या मुफ्ती आने के हम फतवा देते हैं ज़कात दो ज़कात दो ज़कात दो। बोले ज़कात का तरीका तो हमको मालूम है। इसने कहा क्या तरीका? बोला एक डब्बा लिया। बोलो क्या लिया? इधर बीच में रखा डब्बा, और खुद चला गया पहले माले में और बोला जितना पैसा है सब फेंकूंगा। कितना सा डब्बा? जितना मेरे पास पैसा है सब फेंकूंगा। जो डब्बे में गया वो ज़कात का, बाहर निकला वो मेरा। और डब्बा कितना रखा? छोटा सा डिब्बा रखा। तो दूसरे का हट कंजूस, इतना कंजूस है तो ऐसा थोड़ी करने का। तो क्या करने का? डिब्बा हटा, ऐसा राउंड बना, एक रिंग आती है रिंग, ऐसा राउंड। जितना रिंग के अंदर आया वो ज़कात, बाकी बाहर निकला वो कम वक्त और नोट को हवा में उड़ाता है, वो बाहर का ही नहीं सिक्के। तो तीसरा आया हालोल वाला या इबादुल्लाह जैसा, बेवकूफ, एक डिब्बा रखता है अल्लाह के साथ मजाक, एक वो राउंड सर्कल बनाता है मजाक। तो कहा तू क्या करेगा? बस सारा पैसा लेके चला दूसरे माले, सारा पैसा कुछ नीचे बनाएगा, धोखा देने का। दूसरे माले पर जाऊंगा, सब पैसा फेंकूंगा, जितना जमीन पे गिरा वो मेरा, ऊपर गया वो अल्लाह का। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बाद में मौला फिरदौस को पूछ लेना। चलो एक बात का इरादा कर लो। हाँ नहीं इरादा करते हो तो बोलो इरादा करते हो आप लोग? क्या इरादा करते हो बोलो? हाँ मुस्तफ़ा का दामन। मैंने कहा ना रमजान के रोजे कबूल करवाने, दो काम कर लो, हाथ ऊपर करके बोल दो मुस्तफ़ा का दामन। पूरा मजमा साथ में बोले मुस्तफ़ा का दामन, और साथ में बोले हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी नहीं, हमारे रसूल से बढ़ के कोई रसूल नहीं। पक्का पक्का वादा, पक्का वादा, पक्का वादा। आखिरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरा काम अपनी जिंदगी को सुधारना हो, सही बनना हो तो मेरे प्यारों, अगर आपको घर में रोजी में क्या चाहिए? बरकत। उम्र में क्या चाहिए? बरकत। घर में चाहिए मोहब्बत, बीवी में मेरे में, बच्चों में मेरे में। मैं कसम खाता हूँ हालोल के मिंबर पर, एक काम करो, जान, माल, उम्र, इज्जत, दुकान, कारोबार, सब में बरकत होगी। सिर्फ एक इरादा कर लो कि जान जाएगी तो जाएगी, मगर मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक जलालाबाद, यहाँ यूपी में एक शहर है जलालाबाद, वहाँ के जो बानी मबानी हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब। आप अगर यूपी में जाओगे ना, जलालाबाद में एक अल्लाह के वली बहुत बड़ा मदरसा बनाया, उनका नाम क्या है? हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब। यहाँ के बड़े बूढ़ों ने, किसी ने देखा भी होगा, मौलाना ने भी देखा होगा, मैं भी उनके बुखारी के सबक पे गया हूँ। उन्होंने अपनी किताब में, हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब ने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा है। एक चोर था, बस ये आखिरी वाक़या सुन लो। एक कौन था? अब वो चोर क्या सोचा मालूम? चोरी करने का,
फिर किसी की मार खाने का, कोई कपड़ा अल्लाहु फाड़े, कोई अकबर। तमाचा मारे, कोई धक्का मारे। ये छोटी छोटी चोरी करने में कोई फायदा नहीं। कोई बड़ी चोरी करे कि जिंदगी भर आराम से खाए पिए। भाई चोर था, उसने इरादा किया रोज का छोटा छोटा चोरी करने का, तो फिर कुछ बड़ा करे। मेरे प्यारों सुनना, सब लोग सुनना, 5 मिनट में बात खत्म होगी। तो वो चोर ने जब इरादा किया, सोचा बादशाह के महल में चला जाए, तो रोज छोटी छोटी चोरी करने से अच्छा किसके महल में चला जाए। इसी तरह उसने तदबीर किया, सुराग ढूंढा, कहाँ पहुंच गया, बोलो कहाँ पहुंच गया, बादशाह के महल में पहुंच गया। अच्छा, जैसे बादशाह के महल में पहुंच तो गया, अब बड़ी चोरी करना है, तो उसने देखा कि बादशाह अपनी बीवी से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है मालूम? दोस्तों, अगर आपको कारी साहब का ये बयान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।